Now, arrays are collection of cells, memory cells, and contiguous, one after the other. Now, there in programming, many times a situation occur where you want similar type of data to be stored, and more than one time you have to store. For example, if you want to store names and names of students, so you are not going to store just one name or first name, for example, but instead you want to store a list of names of students. So there are many examples that could be given that you might come across a scenario where in a program you are required to write um, a same type of data of many different things. Um, this is one situation, and the situation is that you are asked to write information of same type of an object's multiple information. Like you are asked to, for example, store the names and their contacts. So I may just say this, a contact list. So here you have names and their contacts also. So if we instead of this, we are doing that, I'm creating many names, f name 1, f name 2, and so on. So this will create a lot of problem for us. It will be taking a lot of it will be taking a lot of time to type in the code, and redundancy is occurring, a lot of coding is occurring. Instead, what we should do is we create uh, um, in this case we have to declare the variables many times, same type of variables, but here we will declare only once and many locations will be created. The only thing that we have to keep track of that where we are storing, and we have to keep track of this. So this need to be a little systematic. So arrays are what? Arrays are a collection of cells, contiguous cells, as you can see one after the other. And when you have arrays, these arrays will be one-dimensional, as you see over here, and or two-dimensional, as you see an example over here. So an array has one identifier. It has its indexed index. In other words, we say address, and we also say subscript. Means, for example, if I say the address of these cells are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So this is the identifier, and these are the subscript. So by giving the identifier name and the subscript, I'll be able to manipulate a specific location in the array. The first thing that we need to understand for our programming is when we have to declare an array. Declare. So how do we declare? We say declare, and then, for example, अगर one dimensional array बना रहा हूँ तो I'll say f name, pseudo code में ध्यान रखिए कैसे 1 to, for example, 10 names की list बना रहा हूँ, and I'll say also array word, I'll use it, of string.
सो अगर कहीं पे एग्जाम में कोड में रे यूज हो रही है और आपसे पूछ रहा है कि वो ये किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर है, तो आप बोलते हैं दैट इट इज एन एरे ऑफ वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल एंड ऑफ दिस डेटा टाइप। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ यहाँ पर कि ये जो एरे यहाँ पे नजर आ रही है, ये किस तरह का स्टोरेज है, किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर है, तो आप इसको आंसर मुझे देना चाहिए आपको, चाहे 1 मार्क का हो चाहे 3 मार्क हो। आप कहेंगे इट्स एन एरे ऑफ वन डायमेंशन, और अगर इसमें कोई नाम लिखे होते या कोई डेट्स लिखे होते तो आप उसकी डेटा टाइप बताते। इट्स एन एरे ऑफ वन डायमेंशन, या इट्स अ वन डायमेंशनल एरे, जैसे भी आप लिखना चाहें। इट्स वन इट्स अ वन डायमेंशनल array, it's a one dimensional array of, for example, string data type। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली आप 3 चीजें डिस्कस कर रहे हो। एक तो आप डायमेंशन भी बता रहे हो, और आप एरे का वर्ड भी यूज कर रहे हो, और आप डेटा टाइप का वर्ड भी यूज कर रहे हैं। सो ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये आ जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि ये जो डेटा स्टोरेज टेक्निक है ये कौन सी है, तो आप पूरा उसको बताएंगे, ये याद रखिएगा मेरी बात। अच्छा जी, तो अगर वन डायमेंशनल अरे तो हो तो हम इस तरह से डिक्लेयर करते हैं, और वीबी में अभी मैं करके दिखाता हूँ। और अगर टू डायमेंशनल अरे हो तो आप इसी तरह से करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप लिखेंगे, लेट्स सपोज ऊपर जैसे कि हम कॉन्टैक्ट की लिस्ट बना रहे हैं तो उसका मैं नाम रखता हूँ कॉन्टैक्ट जी। कौन क्या कह रहा है? So I have to leave because I have a class. Okay जी, Aisha has a class. So contact list, and I'll declare it as 1 to 10, comma 1 to 2. So I have 10 rows and 2 columns, array of string. That's it. ये you might see, ये जो मैंने पहला यहाँ पे पॉइंट लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, then you are asked to declare it. This is step 2. स्क्रीन नजर आ रही ना बच्चा लोग मेरी? Yes, sir. Okay, and then third part, Sir, नहीं विजुअल बेसिक स्क्रीन नहीं नजर आ रही। अब नहीं आ रही? ओके, नहीं ये शेयर तो हुई भी है, मैं जो व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ इस वक्त। व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है? Yes, sir. व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है। हाँ ठीक है, अभी व्हाइट बोर्ड ही शेयर किया। तो पहला क्वेश्चन जो है जिसका आंसर मैं बता चुका हूँ कि वो पूछ सकता है कि व्हाट इज दिस डेटा स्ट्रक्चर, तो आप बताएंगे ये एक रे है ऑफ वन डायमेंशन या टू डायमेंशन और स्ट्रिंग डेटा टाइप की। दूसरा क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि ये हम सिनेरियो में कुछ लिस्ट है उसको डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लिखें, तो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट का ये आंसर होता है। थर्ड वो आपसे इसके ऊपर कोई ट्रेस टेबल का क्वेश्चन आ सकता है, या आपसे वो कोई कोड लिखने के लिए कहेगा तो वो सूडो कोड होगा वहां पर, तो वो हम लिखेंगे। और काइंड ऑफ नाउ लेट्स गो टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी, और हम देखते हैं कि उसमें अगर हमने कोई काम करना हो तो क्या क्या काम हो सकता है। ओके, लेट्स क्रिएट, पहले हम एक वन डायमेंशनल अरे डिक्लेयर करते हैं, उसके ऊपर कुछ कोड लिखते हैं और फिर देखते हैं। देम f name as string, ये सिंपली हमारी अरे जो है वो डिक्लेयर हो गई। ईच अरे को सॉरी अभी नहीं हुई, ये 9। सो वीबी में अरे का फर्स्ट इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तो अभी यहाँ पे मैं बताऊंगा हर लोकेशन को डेटा अगर आपने असाइन करना तो कैसे करेंगे। एफ नेम 0 इक्वल्स टू let's suppose Ahmed,
f name 1 equals to आसिफ, क्योंकि स्ट्रिंग अरे है तो डबल कोट्स में। सो इस तरह सारे जिन लोकेशन के ऊपर आप कोई डेटा असाइन करना चाह रहे हैं कोड के अंदर, तो वो इंडिविजुअल सबस्क्रिप्ट हमें देना पड़ता है। सो फॉर एग्जांपल ऐसे, ठीक है। और अगर आपने हर इंडिविजुअल किसी को प्रिंट करना है तो वो भी इसी तरह से होगा, कंसोल डॉट राइट लाइन एफ नेम 0। सो हर इंडिविजुअल स्क्रिप्ट का नाम आपने देना होता है। अभी हम लूप्स में आके देखते हैं कि हम रे कैसे करते हैं। फिलहाल तो मैं एक इंडिविजुअल एलिमेंट रे को बता रहा हूँ किस तरह से मैनिपुलेट करेंगे। सो सर आपने ये कहा था कि कंटीजियस होने चाहिए सारे मेमोरी सेल्स, लेकिन यहाँ तो आपने इतने सारे स्किप कर दिए बीच में। नहीं है तो कंडीशंस ही ना, वो ब्लैंक रह रहे हैं ना फिलहाल। ओके वो फिलहाल ब्लैंक रहेंगे ना। मैंने तो एग्जांपल के तौर पे 3 पे नाम डेटा एंटर करके दिखा दिया आपको, बाकी सारे ठीक है ब्लैंक होंगे। अभी मैं आपको ये दिखाता सर, हूँ हम रन मतलब करूँ। ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते, हमें ऑर्डर वाइज ही जाना पड़ेगा। नहीं कर सकते। मैं यहाँ देखें ये 9 के बाद मैं कुछ कर देता हूँ, एफ नेम 2 इक्वल्स टू। ये तो एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ कि हर इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करने के कैसे हम उसको उसका सबस्क्रिप्ट बताएंगे। ओके सर। यानी कि ये एड्रेस है, हमारी एरे का नाम तो एफ नेम है, लेकिन उसकी लोकेशन क्या है 0 1 9 2। ये इस तरह से हम हर लोकेशन को अलग-अलग बता रहे हैं कि कौन कौन सी लोकेशन हमारे पास या डेटा स्टोर कर। ठीक है अब ये मैं हर एक को इंडिविजुअली प्रिंट कर रहा हूँ और कुछ ब्लैंक भी प्रिंट कर दूंगा, अगर आपको पता चलेगा ब्लैंक है तो वहाँ कुछ भी नहीं था। सो ये एक्सेस भी हम इंडिविजुअली कर सकते हैं। लाइक मैं 9 को कर रहा हूँ, यहाँ मैं 3 को कर लेता हूँ। अब कहीं पे हमने कुछ नाम स्टोर किए हैं, कहीं नहीं किए हैं। यहाँ 1 कर देता हूँ और यहाँ 0 कर देता हूँ और यहाँ पर मैं 8 कर देता हूँ, ठीक है। सो और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट रीड की लिख देता हूँ ताकि जब प्रोग्राम रुक के हमें दिखाए क्या हो रहा है। सो व्हेन आई रन दिस कोड, सो दोज वैल्यूज जो मैंने स्टोर की हैं एफ नेम 0 1 9 और 2 के अंदर, उनको मैंने प्रिंट भी कराया। कुछ जिनके अंदर डेटा स्टोर नहीं भी कराया वो भी मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया है। कोड तो हमें दिखाता है कोड अभी। सो अच्छा, मैंने कंसोल डॉट राइट की स्टेटमेंट लिखी है, जरा ध्यान रखिएगा। कंसोल डॉट राइट लाइन नहीं लिखा था मैंने जी। अब देखिए मैंने ये वो कामरान आसिफ और अहमद दिखा रहा है और बाकी जो है नहीं दिखा रहा। लेट मी रन दिस कोड अगेन बाय करेक्टिंग दिस। यहाँ पे कंसोल और राइट लाइन में लिख दूं ताकि थोड़ा गैप हो जाए हर एक के अंदर। ठीक है, अब इसको दोबारा रन करते हैं कोड को। अब देखें कामरान और कामरान के बाद विच इज एट लाइन 9 और उसके बाद एफ नेम 3 प्रिंट हुआ है तो वो ब्लैंक प्रिंट हुआ है। एफ नेम 4 वो भी ब्लैंक है, उसमें कुछ था नहीं। एफ नेम 1 में मैंने आसिफ स्टोर किया था, एफ नेम 0 में मैंने अहमद स्टोर किया था, एफ नेम 8 में ब्लैंक था। तो जहाँ जिस जिस मेरे एरे की लोकेशन पे कुछ नहीं है वहां पर कुछ नहीं दिखा रहा, वो खाली मैंने ब्लैंक उसने प्रिंट करके दिखाया। अच्छा, एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। ये मैं ऐसे यहाँ सारा कुछ डिलीट कर रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कमेंट डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, इनिशियलाइज। ये ये आप देखिएगा अभी A2 में आप इतना ज्यादा क्वेश्चन आएंगे इनिशियलाइजेशन का। हर पेपर में आपको 4 से 5 मार्क के इनिशियलाइजेशन के आ रहे होते हैं, एरे की इनिशियलाइजेशन। तो जब भी हम कोई
प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं या प्रोग्राम के बीच में अक्सर हमें जो अरे डेटा होता है, अरे होती है हमारी, उस we somehow we initialize it with some kind of a dummy value. वो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है बाज़ औक़ात। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोग्राम रन हो रहा है, उसमें अरे के अंदर डेटा आ गया। अब लेट्स सपोज उस प्रोग्राम ने फर्दर आगे जाना है और फ्रेश कैलकुलेशन करनी है या फ्रेश लिस्ट लेनी है, तो उस अरे में तो ऑलरेडी कुछ नाम पड़े हुए हैं, तो उसको सारे को मुझे रीसेट करना है एक तरह से अरे को। तो रीसेट करने के लिए हम उसको इनिशियलाइज दोबारा से कर लेंगे। वो कैसे, हम एक लूप ले लेते हैं फॉर इंडेक्स इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमारी अरे जो है 10 एलिमेंट्स की है, तो मैंने 10 का लूप चलाया है। फर्स्ट इंडेक्स फर्स्ट सबस्क्रिप्ट 0 है से 9 तक, और मैं अपनी जो एफ नेम की लिस्ट की हर लोकेशन है उसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ थ्रू इंडेक्स वेरिएबल, क्योंकि इंडेक्स पहले 0 है और 9 पे एंड हो जाएगा। और मैं हर एक को डबल कोट्स ब्लैंक ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकता हूँ, या कोई सूटेबल किसी टेक्स्ट से डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो मैं यहाँ पे कोई वैल्यू दे देता हूँ। जैसे मैं मिसाल के तौर पे यहाँ नल दे देता हूँ आपको, ठीक है, ताकि हमें बस ये पूरी रे को हम नल से इनिशियलाइज करें। और मैं इसको यहाँ ब्लॉक कर रहा हूँ ताकि मैं एक्चुअली जो रे के अंदर नल स्टोर हुआ है वो आपको दिखा सकूं। सो आई एम रनिंग दिस ओवर हियर। Okay, debug Windows Watch. Where is Watch? Okay जी, ये आपको एफ नेम लिस्ट के सारे एलिमेंट्स में नल नजर आ रहा है? यस सर। अब ये देखेंगे हमने क्या किया, हमने एक लूप लगाया यहाँ पर, और इस लूप के अंदर हमने एक स्टेटमेंट लिखी है, और इस एरे के हर लोकेशन को हमने नल से इनिशियलाइज कर दिया। ये अब आपके लिए ये जो इस वक्त मैंने काम किया है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। Why? Because in A2 this is the most important. ये बार बार हर हम जो काम कर रहे होंगे ना कोडिंग पेपर 4 के अंदर खास तौर पर, उसमें ये बार बार आएगा, तो इसलिए इसके लिए बहुत ध्यान से आपने करना है। अब लेट्स सपोज हम कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाते हैं, मैं इसका नाम फर्स्ट नेम की जगह इस एरे को कॉन्टैक्ट लिस्ट कर देता हूँ, कॉन्टैक्ट लिस्ट, ठीक है जी। और कॉन्टैक्ट लिस्ट के का मैं कॉन्टैक्ट लिस्ट में दो काम कर रहा हूँ। एक में एरे बना 10 रोज होंगी इसमें 0 से लेके 9 तक, और 0 से लेके 1 तक मेरे एलिमेंट्स होंगे। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मैं एरे की हर लोकेशन, यानी कि अगर हम ये देखें किधर कीजिए हमारा व्हाइट बोर्ड, ओके, ये देखिए, ये जो ऊपर हमने एरे बनाई थी, ये इसमें हमारे पास 2 कॉलम्स हैं। अब अगर इन कॉलम्स को आप देखें तो इनके एड्रेसेस क्या बन रहे हैं, अगर हम वीबी कोड में कर लें एड्रेसेस 0 1 2 सो ऑन 9, ठीक है। और जो कॉलम के एड्रेसेस बन रहे हैं मैं नीचे लिख रहा हूँ। अच्छा, वैसे ऊपर लिखना चाहिए था, लेकिन ऊपर, चलो ऊपर ही लिख देता हूँ नेम, और वो हटा लेता हूँ क्योंकि ठीक है, ओके। ये आ गया 0 और ये 1। तो ये जो हमारा ये पहला वाला सेल है, इसका जो सबस्क्रिप्ट बनता है वो कॉन्टैक्ट लिस्ट में क्या बनता है, 0 0, ठीक है ना, ये बना। तो ये वाला जो एड्रेस है, ये वाला, इसका सबस्क्रिप्ट क्या होगा, एनीबॉडी? 0 1, क्योंकि इसकी रो 0 है और कॉलम 1 है, तो ये इसका सबस्क्रिप्ट जो बनेगा, यानी कि एड्रेस बनेगा, वो 0 1 बनेगा। ज़ैनब,
मुझे बताएं कि इसका सबस्क्रिप्ट क्या बनेगा, एड्रेस 10। वेरी गुड, ये बनेगा 10, ठीक है। और ये क्या बनेगा 11। 11 बनेगा, ठीक है। अब अगर मैं इसकी कोडिंग करूं कि हर लोकेशन को इंडिविजुअली जाके यूजर से मैंने उसका कुछ नल असाइन करना, फॉर एग्जांपल नल असाइन करना, तो मैं ये कराऊंगा विच इज नॉट राइट। मैं क्या कराऊंगा, मैं करूंगा कॉन्टैक्ट लिस्ट 0,0 और इज इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल console डॉट रीड लाइन, मैं यूजर से ले रहा हूँ डेटा, ठीक है। फिर इस स्टेटमेंट को मैं दोबारा लिखूंगा, कॉपी पेस्ट, फिर 0 1, फिर दूसरी मेरी रो आ जाएगी, बल्कि मैं दोनों को इकट्ठा लिख लेता हूँ क्योंकि आपको माशाल्लाह समझ आ गई है। कॉपी पेस्ट, तो मेरी ये फर्स्ट, ये जो रो 1 और ये रो 1 का सेकंड कॉलम, फिर पेस्ट, ये मेरी सेकंड रो का 0 कॉलम और सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम। इस तरह मुझे ये लिखना पड़ेगा। अब ये सीख नहीं है, बजाय इसके कि मैं बार बार ये स्टेटमेंट लिखूं, व्हाट आई शुड डू इज कि आई शुड राइट अ फॉर लूप फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू, एक मुझे फॉर लूप लगाना पड़ेगा रोज को कंट्रोल करने के लिए, और दूसरा मुझे लूप लगाना पड़ेगा मेरे कॉलम्स को कंट्रोल करने के लिए। फॉर ईच रो, देखें ये दो, एक रो है ना 0 0, फॉर ईच रो देयर आर 2 कॉलम 0 and 1, ठीक है ना जी। अगर मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करूं, एनोटेट करूं, फॉर ईच रो देयर आर 2 कॉलम्स, और अगर मैं इसे अनडू करूं थोड़ा सा, एनोटेशन लूप पे वापस चला जाऊं कोडिंग में, सो अगर आप ये देखिए थोड़ा सा अभी और भी काम करना पड़ेगा। फॉर ईच रो there are 2 columns, for each row there are 2 columns, for each row there are 2 columns. So for rows I have to run the loop from 0 to 9, and for each row I have to run the inside loop 0 1. तो ये मुझे काम करना है। तो इसको मैं अब मैं कैसे VB में कोडिंग कैसे करूंगा, लेट मी शो। I'll say for row from 0 to 9 का मैं लूप लगाता हूँ, और फिर मैं फॉर कॉलम इज इक्वल टू 0 to 1 का लूप लगाता हूँ, और इनसाइड मैं इस लाइन को यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पर हम रो लिख देंगे, और यहाँ पर भी हम रो लिख देंगे, और सामने हम कॉलम। इसे 2 दफा लिखने की जरूरत तो नहीं है? जी जी, क्या कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। सो अब हमें एक स्टेटमेंट एक ही दफा लिखनी पड़ी, बार बार 10 दफा या 11 दफा नहीं लिखनी पड़ी। सो ये लूप क्या करेगा, 9 दफा आउटसाइड लूप चलेगा, और हर आउटसाइड लूप के लिए ये वाली इंस्ट्रक्शन 2 दफा एग्जीक्यूट होगी। सो फॉर 0 0, अच्छा अब इसको एनोटेट करते हैं थोड़ा सा। जब हमारी रो 0 होगी और कॉलम 0 होगा, तो रो 0 होगी और कॉलम 0 होगा, यानी कि ये वाला सेल, तो यहाँ पे कोई कॉन्टेक्ट नेम आ जाएगा। और जब रो 0 और कॉलम जो है हमारे पास होगा जी, देख रहा हूँ ये यहाँ से ऑटोमेटिकली रिलीज नहीं होता, अच्छा जी, तो 1, तो यहाँ पर उसका कॉन्टेक्ट आ जाएगा। फिर जब रो 0 की बजाय 1 होगी और कॉलम 0 होगा, तो यहाँ पे नाम आ जाएगा, और जब रो 1 का कॉलम 1 आएगा तो यहाँ पर नाम आ जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू हैपन। सो मैं अब क्या करने लगा हूँ, मैं यहाँ कंसोल डॉट रीड लाइन नहीं कर रहा, बल्कि
मैं एक टेक्स्ट वैल्यू जो है रेंडमली यहाँ पर दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं सब की जगह पर 111 दे देता हूँ, एक डमी वैल्यू दे देता हूँ। अब नाम में भी 11 ही आ रहा होगा और हर जगह बना है। इसको मैं console.read की कर देता हूँ और when I execute this code तो अब हम देखते हैं जाके हमारी अब जो array है, यहाँ तो टेबल ऑफ फॉर्म में नजर नहीं आएगी, लेकिन हम फिर भी देखते हैं कि वो किस तरह से हमें नजर आती है। Okay, now this is the same place और वेरिएबल वॉच विंडो खोल लेते हैं एंड इसमें हम कॉन्टैक्ट लिस्ट बना लेते हैं। कोई और पार्टिसिपेंट तो नहीं आया ना? ओके, सो ये किधर चला गया? सर एल बड़ा है कॉन्टैक्ट लिस्ट का। ओके, कॉन्टैक्ट लिस्ट। अब आप देखें, अब ये सारे हमें दिखा रहा है। रो 00 के ऊपर हमें 11, रो 0 कॉलम 1 पे भी 11, रोज 1 कॉलम 0, रो 1 कॉलम 0, सारे लोकेशंस, सारी रोज और सारे कॉलम्स के अंदर एक डमी वैल्यू आ गई। मैं आपको फिर एम्फसाइज कर रहा हूँ कि आपकी A2 के अंदर ये इतना सा जो पार्ट ऑफ कोड है, ये बिलीव करें, आपको अगर पिछले 20 साल के कंप्यूटिंग के और ICT इसके कंप्यूटर साइंस के पेपर उठा के देखें तो ये वाला जो आपका कोड है इनिशियलाइजेशन का, मोर और लेस हर पेपर में आपको मिलेगा। और ये एम्फसाइज करने के बावजूद भी स्टूडेंट्स ये कोड में गलती करते हैं, ये कोड नहीं कर पाते। उसकी वजह ये है कि वो सिर्फ या तो मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं या प्रैक्टिस नहीं करते। So by doing this, we can control our arrays. This is the way we assign a value to an array element, and this is in the same way we can extract data out of it. We can use it to manipulate. आगे आपकी फाइल हैंडलिंग आएगी, वहाँ पे भी यूज होना है। मीन्स कि अगर मैंने आउटपुट करनी है, अभी मैंने आउटपुट पहले भी करके दिखाई थी, मैं दोबारा console.writeline आपको करके दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिस्ट और 0,0। सो इसको थोड़ा सा हम इंटरेस्टिंग कर लेते हैं, कॉन्कैटिनेशन यूज करके नेम स्पेस और उसके बाद concatenation symbol. Let me stop this execution of the code. Okay, so console.writeline name concatenation symbol और वो आ गया जी, और उसके बाद उसका नाम आ जाएगा बंदे का, कॉपी, और फिर यहाँ से concatenation symbol और इसे पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर उसका नंबर। ये देखिए, सो ये अरेज को हैंडल करने की छोटी सी मैंने एक एग्जांपल दिखाई है कि आप किस तरह से अरे के अंदर डेटा एक्सेस करेंगे और किस तरह से उसको रिट्रीव करेंगे। सो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है अरेज से रिलेटेड वो ये है कि यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द declaration and manipulation of the array and how we are accessing each element with a subscript. If it's two-dimensional, we have to give a two subscripts, two different coordinates, and if it's a single dimension array, one-dimensional array, तो फिर एक subscript होगा. So this is it for today. I think काफी है ये, आप लोग थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लें तो इंशाल्लाह कल फिर हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग और उसको फिनिश कर लेंगे, क्या कहते हैं जी, मैनिपुलेशन फंक्शंस को, बिल्ट इन फंक्शंस और अरेज को हम
बिल्डिंग फंक्शंस और मॉडल प्रोग्रामिंग को कल डिस्कस कर लेंगे। मॉडल प्रोग्रामिंग ज़्यादा नहीं करना, हमने सिर्फ देखना है फंक्शंस कैसे बनाते हैं और प्रोसीजर्स कैसे बनाते हैं। तो एक दो प्रोसीजर फंक्शंस बना के हम उसको इंशाल्लाह चेक कर लेंगे। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस एरेज तो मुझसे पूछ लें आप लोग। नो सर। ठीक है जी, चलो ओके, फिर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफिज।